हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विजयम विश्व ज्ञान ਮੰਤਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਮੈਥ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਓਪਨ ਬੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਲਰਨ ਵਿਦ ਫਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ लगभग 20 स्टूडेंट ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 5th ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਏਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਏਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਪੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਐਚਪੀ। ਜਦੋਂ ਏਪੀ, ਜੀਪੀ ਤੇ ਐਚਪੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਜੀਪੀ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪੜ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੀਪੀ ਐਚਪੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਏਪੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਪੀ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਐਚਪੀ ਬਾਰੇ ਫੁੱਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਏਪੀ ਜੀਪੀ ਐਚਪੀ ਆਪਣੀ ਹੋਗੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੀਪੀ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਏਪੀ ਤੇ ਕੁਝ ਟੌਪ 20 ਜਾਂ 25 ਐਮਸੀਕਿਊ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸ਼ੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ 7:30 ਵਜੇ 8:30 ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਰੈਗੂਲਰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 7:30 ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਲਾਸ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਲੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 7:30 ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਕਲਾਸਿਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਗਿਆਨ ਮੰਤਰਾ YouTube, Facebook, Instagram, Telegram ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਆਪਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 9111500017 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੁਐਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਦਬਾ ਦਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ, ਕਰ ਦਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੀਕੁਐਂਸ ਐਂਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਲਾਊਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੀਰੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਏਪੀ ਜੀਪੀ ਐਚਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਏਪੀ। ਹਾਂਜੀ, ਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲੇਸ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਕਸ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜੀ, ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਏਪੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ AM is known as ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਤੇ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਪੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੈ A ਤੇ B, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? A plus B by 2 ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? A plus B by 2 ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ A ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। A ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ? A plus B by 2। ਤੇ A plus B ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? 2 ਟਾਈਮ A ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। 2 ਟਾਈਮ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੋਈ ਵੀ n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ 2 ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ n ਇੰਟੀਜਰ ਹੈ ਤਾਂ n ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? n ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਆਫ n ਇੰਟੀਜਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? a ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਸੌਰੀ, a ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਮ ਆਫ n ਇੰਟੀਜਰਸ ਦਾ ਸਮ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? n ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦੇਵੇ n ਇਹ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਨੇ A ਤੇ B। ਦੇਖੋ, ਇਫ
in between A and B कि जे आप A ते B दे अंदर इंसर्ट करने ने एन अर्थमेटिक मीन if in between A and B we have to insert एन अर्थमेटिक मीन्स कहने का मतलब एन अर्थमेटिक मीन्स इन्हां दे विचकार आप इंसर्ट करने ने कहने का मतलब A1 A2 अप टू सोन AN इन्हां दे विचकार इंसर्ट करना है ठीक है जी तो जेड़ा है तो अपने कोल की है देन जेडी अपने कोल सीरीज बनेगी अर्थमेटिक मीन इन्हां दे विचकार इंसर्ट करन ते अर्थमेटिक मीन है अर्थमेटिक मीन नु इन्हां दे दोवां दे विचकार इंसर्ट करन ते जेडी सीरीज बनेगी A1 क्योंकि स्टार्टिंग A तो है अप टू सोन AN ते B आ साडे कोल एक AP सीरीज बनेगी जी केड़ी सीरीज बनेगी AP होएगी ठीक है ते ए सीरीज दे अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगियां की होएगी जी पहली गल याद रखनी है क्या है कि AP सीरीज होएगी ते इस दे अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे नंबर ऑफ टर्म्स जेडी है जी साडे कोल n+2 होएगी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे n+2 नंबर्स ऑफ टर्म दे अंदर होंगे ठीक है जी ते एदे अंदर की है जी इस दी फर्स्ट टर्म की होएगी अपने कोल सीरीज दी फर्स्ट टर्म A होएगी ते कॉमन डिफरेंस की है जी कॉमन डिफरेंस साडे कोल आएगा इना दा B - A by n+1 हुण आप प्रूफ करके दिखा देने किवें बनया देखो तुहानू लास्ट टर्म दी हुई है लास्ट टर्म की है जी B है B की है AN है ओ सॉरी लास्ट टर्म की n+2 टर्म है ना तो AN+2 दी वैल्यू B दी हुई है आपा AN+2 दा फार्मूला की होंदा है A plus n minus 1 into D इक्वल इसके बराबर है इथों D दी वैल्यू कट लो हाँ जी आ गया जी n+1 into D इक्वल आ गया B minus A ते इथों D कितना आ गया B minus A अपॉन n+1 तो इसका कॉमन डिफरेंस अपने कोल आ हुंदा है ठीक है जी हाँ जी इसे दे अंदर A1 किस दे बराबर होएगा फिर अपने कोल जे अपने कोल A ते B दित्ती हुई है D दिता है ते अपन कहदे विचकार अर्थमेटिक इंसर्ट करो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करो तो किस दे बराबर होगा जी A1 किस दे बराबर होएगा A1 होएगा A plus D A2 किस दे बराबर होएगा जी A plus 2D इसी तरह अप टू सोन चलता जाएगा ते AN किस दे बराबर होएगा जी A plus ND होएगा जिसनु कि आपां की लिख सकते हां B minus D लिख सकते हां A plus ND नु B minus D क्यों लिख सकते हो दसो देखो AN A plus ND होएगा अपने हिसाब नाल बट इस हिसाब नाल जेडी आपां आ सीरीज बनी है पर अपन पता है AN की हुंदा जी अपन पता है AN हुंदा A plus n minus 1 into D ते n minus 1 दी वैल्यू हुणे आपां इत्थों कढ ले हां मिनट हाँ जी देखो आपा की क्या AN की A plus ND है या फिर A जेड़े जी अपने कोल B minus D दे बराबर भी होएगी AN जेड़ा जी B minus D दे बराबर होगा किवें होएगा देखो आपा सीरीज के अंदर A के हिसाब नाल ता A1 आ मन्निया सी ना पहला बट हुण आपा A1 नु की लेके चले A plus D A2 की A plus 2D एदा मतलब A सीरीज के अंदर अपने कोल टोटल टर्म्स कितनी होंगी A नु तो आपा छड्डता A नु तो इधर अंदर ले आई नहीं A नु इधर अंदर नहीं लिया एदा मतलब A सीरीज के अंदर टोटल टर्म कितनी हो गए n+1 टर्म्स ने n+1 टर्म्स ने ते n+1 टर्म की है B है तो nth टर्म की होएगी जी B चो D घटा देंगे तो AN दी वैल्यू की हुंदी अपने कोल B minus D हुंदी है ठीक है जी जे तुहानू पूछ ले कि सम ऑफ इंसर्टेड AM कि जिन्ने तुसी AM इंसर्ट किते जिन्ने अर्थमेटिक इंसर्ट किते A तो B ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋਏਗਾ ਜੀ n/2 A plus B ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਮ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ n/2 A plus B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ AP ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ A B C ਤਿੰਨ ਟਰਮਸ ਨੇ AP ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ B ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ तो याद रखो जरा B है जी वो A plus C/2 दे विच बराबर होता है इन्हां दोवां दे सम डिवाइड बाय 2 करोगे तो B दी वैल्यू आ जाएगी ठीक है जी कोई भी AP ले लो 7 11
ਤੇ 15 ਤੇ ਆ किस ਦੇ बराबर होएगा जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ डिवाइड बाय 2 15 ਤੇ 7 22/2 11 आ गया ना। तो याद रखियो विचकार वाला टर्म फर्स्ट ਤੇ सेकंड टर्म ਦਾ ਸਮ डिवाइड बाय 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ है। हाँ जी ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस क्वेश्चन। हाँ जी पहला क्वेश्चन है if 15th term of AP is 21 more than 8th term, find common difference। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਕੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ AP ਦੀ 15ਵੀਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੀ 8ਵੀਂ ਟਰਮ ਤੋਂ 21 ਮੋਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ AP ਦੀ 15th ਟਰਮ ਉਸ ਦੀ 21st ਟਰਮ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 21 ਮੋਰ ਹੈ 8th ਟਰਮ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘਟ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਘਟਾ ਦੋ। 15th ਤੇ 8 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 15 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਤੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਾ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਉਹ ਸੌਰੀ कॉमन डिफरेंस आपको पता करना है। ठीक है, आपा की करना है पहला टर्म्स नु घटाना है। ठीक है, फिर जिन्ना वध है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਹੈ ਜੀ 21 ਵਧ ਹੈ ਤਾਂ 21 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ 7 ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਆ ਗਿਆ। ठीक कल ही दसी सी लर्न कर लियो। ये तुसी जी स्टिकी नोट से लिख के ला लो ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ याद हो जाए। जनरली करते लंबा पैना सी कहंदा 15 कदे भी क्वेश्चन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਟਰਮਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਆਪਸ ਚ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਾਮਨ डिफरेंस। ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਕਾਮਨ डिफरेंस ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ, A15 A8 ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ 21 ਵੱਧ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ A + 14D ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਤੁਸੀਂ A + 7D + 21। ਇਹ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੁੰਦਾ, 7D = 21 ਆਂਦਾ, D = 3 ਆਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਨਰਲੀ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 15 ਤੋਂ ਜੇ ਮੈਂ 8 ਘਟਾਵਾਂ 7 ਆਂਦਾ ਤੇ 21 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ 3 ਆਂਦਾ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ OT ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਓਨ ਟਿਪਸ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साडे कोल की है। सॉरी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडे कोल क्वेश्चन नंबर 2। कहना द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n term of 2AP, the ratio of sum of n terms of 2AP दो AP ਦੇ n term ਦੇ ਸਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ 2n ratio n plus 1, 2n ratio n plus 1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। find ratio of 8th term, find ratio of 8th term। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲਗਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਟ੍ਰਿਕ। OT क्वेश्चन है ਕੀ ਹੈ ਜੀ OT क्वेश्चन है। ठीक है हाँ जी। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੇ FN/GN ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟਰਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2n - 1 ਕਰ ਦੇਣਾ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, 2n - 1 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ n ਦੀ जगह। ठीक है जी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2n - 1 ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2n - 1 ਥੱਲੇ ਵੀ 2n - 1 + 1 ਉੱਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 4n - 2 ਥੱਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 2n। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ n ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 8 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ 8 ਪਰ 2 32 ਚੋਂ 2 ਗਏ 30 ਤੇ ਆ 16 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 15:8। ਆਪਸ਼ਨ नंबर ए आलोचक आ गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी कितना आ गया 15:8 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 15:8। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਮ ਲੈਂਦੇ फिर पहली एपी बनाते उसकी ए कटते डी कटते S1 S2 S3 में करके फिर दूजी एपी बनाते ओदा ए डी कटते फिर उन्होंने दोवां दी 8th टर्म करते फिर उन्होंने भाग करते किन्ने स्टैप करते पूरा पेज भरते तो ये चंगा आप 2 स्टैप के अंदर कर लिया उवें तो स्टैप तो इको ही आया आ तो मैं तुहानूं फॉर्मूला दसण लई लिखे। ठीक है तो कितना आ गया जी 15:8 अपने को इसका आंसर आ गया। हाँ जी सैकेंड क्वेश्चन है कहते the sum of या फिर the sum to infinity of following series इस सीरीज का इनफिनिटी ताई सम पता करना तुहानूं। हाँ जी सीरीज केड़ी दित्ती है 1/1/2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 अप टू सो ऑन इनफिनिटी तक जा रही है तो इसका सम की होएगा जी आंसर दस दियो मैनू A इनफिनिटी B 1 C 0 D नन ऑफ दीज। तो देखो जी इसनूं करन दी मैं शॉर्टकट दस दिया प्रॉपर मैथड लई तुसीं की करोगे जी देखो प्रॉपर मैथड लई तो तुसीं सीरीज बनाओगे उन्होंने कन्वर्ट करोगे n के अंदर। ठीक है देखो प्रॉपर मेथड दस दिया पहला प्रॉपर मेथड के अंदर मैं देखा कि मेरे को सीरीज किस तरह की बन रही है जिवें आप करते ना ग्रेजुएशन के अंदर चेक करते हैं मेरे को टर्म बन रही है n ते n + 1 दी। ठीक है तो मेरे को nth टर्म की बनी n × n + 1 बन गई। ठीक है n × n + 1 बन गई तो मेरे को Sn किस के बराबर होएगा जी इस चीज में लिख सकते हैं 1 - 1/2 + 1/2 - 1/3 आ चीज लिख सकते हैं अप टू सो ऑन जाएगा आ 1/n - 1/n + 1। याद रखियो इस चीज में हमें लिख सकते हैं आ की बनेगा मेरे को इथों 1 बचेगा आ कैंसिल हो जाएगा आ आप देख लेना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है इस चीज आ कैंसिल हो जाएगा मेरे को बचेगा 1 - 1/n + 1 ते इनू सोल्व किया n/n + 1 मेरे को आ गया। ठीक है जी हुण n/n+ आ गया n के इनफिनिटी ताई तो इहदे नाल आपां इनफिनिटी तक लिमिट लवांगे तो अपने को इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी n/n + 1 होवे तो क्या आ जांदा आंसर अपने को आ जांदा जी 1। ठीक है n कॉमन करके 1/n बनेगा 1/n 0 के 1 बन जाएगा तो हमें क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया जी 1 आ गया आ तो सी प्रॉपर मेथड। हुण तुसीं एक चीज याद रखनी तुहानूं एक रिजल्ट दसदी हां तुहानूं कदे पुछ ले सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ टाइप कि है जे कोई भी इनफाइनाइट सीरीज है तो उसके टाइप की है 1/a1 b1 a2 b2 a3 c3 इस तरह की कोई भी सीरीज है जिस दे अंदर a1 a2 a3 ap दे अंदर ने b1 b2 b3 भी ap दे अंदर ने दो अलग अलग ap's हैगियां ने इस तरह की कंडीशन कदे भी बन जाए इस तरह की कंडीशन बन जाए तो उस सीरीज का इनफाइनाइट तक सम पता करना हो तो वो सम अपने को किस दे बराबर होगा जी 1/a1 × b1 - a1 होएगा। उस दे सम दा आई फॉर्म याद रखना है 1/a1 × b1 - a1 दे बराबर होएगा। ठीक है जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b1 - a1 है वो किस दे बराबर होना चाहिए जी b2 - a2 तो कहने का भाव कि इन्हां दा डिफरेंस है इन्हां दा डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। ठीक है तो इसी तरह का क्वेश्चन एक और दस दिया क्वेश्चन है जी अप टू इनफिनिटी तक सम पता करना है 1 × 4 4 × 7 7 × 10 अप टू सो इनफाइनाइट कितना सम होएगा हुण तां तुसीं नाल दी नाल आंसर दे सकते हो मैं ऑप्शनल लिखा इन्ने नूं तुहाडा आंसर जिहड़ा है वो आ जाना चाहिए है।
ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਆ AP ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਵੀ AP ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਿੰਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੇਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆंसर ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 1/A1 1 ਇਨਟੂ ਕੀ ਸੀ ਜੀ B1 A1 कितना बन गया 1/3। कुछ करना पिया, कोई सीरीज सोचनी पई केड़ी बन रही है, कुछ हल करना पिया, कोई फार्मूला याद रखना पिया, कुछ नहीं करना पिया, इको फार्मूला याद रखना है कि इनफाइनाइट टर्म सीरीज का सम पूछ लिया जाए ते इस टाइप की सीरीज होवे जिवें दी मैं लिखी हुई है, तो उसका आंसर की आएगा जी, सम का आंसर की आएगा 1/A1 इनटू B1 A1। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते आप हम। हाँ जी, हुण मैं मेरे फेवरेट मैथड नाल क्वेश्चन करना दसदी हां तुहानू। मैं इसनू मेरे मैथड नाल करांगी, तुसीं आपदा देख लिओ किवें करदे हो। तुहानू कुछ होर मैथड आंदा तो तुसीं कमेंट सेक्शन दे दस दिओ। कहदा इफ SN डिनोट, पता है किसनू डिनोट करता है, मैं ना लिखा इत्थे सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, देन पता की करना है तुसी SN + 3 - 3SN + 2 + 3SN + 1 - SN, इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है जी, तुसी इसकी वैल्यू पता करनी है। हाँ जी, अपना क्वेश्चन सी पेपर के अंदर कोई जड़ा ग्लिच आ गया सी तां वो उड़ गया। हाँ जी, अपना क्वेश्चन की सी, अपना क्वेश्चन सी ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਥਰਡ क्वेश्चन ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ SN डिनोट सम ऑफ दी सम ਦੇ ਸਾਰੇ AP ਦਾ, then ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ SN + 3 - 3SN + 2 + 3SN + 1 - SN। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਵੈਲਿਊ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ A ਸੀ ਜੀ 0, ਆਪਸ਼ਨ B ਹੈ 1, C ਹੈ 1/2 ਤੇ D ਹੈ 2। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं जो इस क्वेश्चन नु प्रॉपर मेथड ते सब्स्टिट्यूशन मेथड नाल दोनों नाल समझांदे आ, शॉर्ट ट्रिक नाल भी। ठीक है, तो देखो जी पहले शॉर्ट ट्रिक नाल दस दिंदे आ, शॉर्टकट नाल। जदों भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तुसी की करना है, तुसी उसदे अंदर सब्स्टिट्यूशन कर लेना। एक AP ले लेनी है कि लेट अपने कोल AP की है जी 1 2 3 4, आ AP ले लेनी है आपां 1 2 3 4 अपनी AP होगी। ठीक है जी, हुण आ अपने क्वेश्चन दित्ती हुई है, इत्थे n नु 1 पुट कर दो, n नु 1 पुट कीता, अपने कोल की बनया S4 - 3S3। ठीक है जी, -S1 आई बनया। हुण S4 की है जी, पहला चेहरिਆਂ ਦਾ जोड़ कितना बन रहा है जी, अपने को 10 बन रहा है, -3 टाइम तिना ਦਾ जोड़ 6 बन रहा है, -1 एक मिनट, अच्छा +3S2 - S1 बन सी, +3S2 S दोवां ਦਾ सम 3 बन रहा है ते S1 कितना है 1। ਇਹਨੂੰ सोल्व करो, आ गया जी 10 - 18 + 9 - 1 19 19 का कितना आ गया जी 0। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर A। ठीक है जी, तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन मेथड नाल इसनु आपां सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसके बजाय जे आपां प्रॉपर मेथड नाल करिए तो प्रॉपर मेथड नाल करने लई तुहानू देखो आपां ने कोल की है SN + 3 दिता है, SN + 3 की लिख सकते हैं SN सम ऑफ n टर्म्स प्लस n + 1 1th टर्म प्लस n + 2th टर्म प्लस n + 3th टर्म, आई बनेगा। ठीक है जी, आई चीज बनेगी। इसी तरह SN + 2 की बनेगा SN + TN + n + 1th टर्म प्लस n + 2th टर्म। इसी तरह SN + 1 की बनेगा SN + n + 1th टर्म, आई चीज बनेगी। हाँ जी, तो हम देखो आपां की करांगे, इस आ सारी वैल्यू जिहड़ी आपां कड्ढियां ने इस नु आपां ऊपर वाली इक्वेशन दे अंदर पुट कर दांगे, इस चीज नु आपां इस इक्वेशन दे अंदर पुट करांगे तो की बनेगा। देखो सोल्व करन ते जो तुसीं इहनू सोल्व करोगे ना, आ आएगा SN - 3SN, SN तो सारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, अपने को बचेगा TN + 1 - 2TN + 2, सोल्व करके देख लो, ये चीज बचेगी प्लस TN + 3। ठीक है जी, ऐसे मैं की लिख सकती हूँ TN + 1 प्लस TN + 3 अलग लिख लिया -2TN + 2। हुण मैनूं एक गल दसो, मैं हुणे फार्मूला दस के आई सी कि कोई भी तीन टर्म A B C AP च हन
ਤਾਂ ए b किस दे बराबर ਹੁੰਦਾ ਹੈ a plus c by 2 ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ a plus c 2b ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ a b c ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਦੂਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਤੀਜੀ ਹੋ ਗਈ। तो इतों की आ गया a plus c इक्वल 2b होता है, तो आ भी 2b माइनस 2b कितना आ गया जी 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है जी 0 आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन ना करोगे तो इजी है, जर्नली करोगे तो तुम पता नहीं कितने इस क्वेश्चन किस फार्मूले के अंदर अटेम्प्ट करके उसमें लेंथी बना लोगे। तो बेटर है इस तरह के क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मैथड नाल किया जाए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 है साडे कोल, कहंदा rth टर्म, अच्छा की कह रहा क्वेश्चन है, कहता एपी दी कहता फर्स्ट टर्म जी है, किसी एपी दी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस जेड़ा है जी तुहाडे कोल डी है, ठीक है जी। कहता इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर, कहता फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स एम एन, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर एम एन ने, इस तरह ने, किस तरह ने कि एम ते एन बराबर नहीं ने, ते टर्म mth टर्म है 1/n ते nth टर्म है 1/n। कल इस तरह का एक रूल भी दसिया सी मैं तुहानू, है ना। देन a माइनस डी किस दे बराबर होएगा, पूछा है a माइनस डी किस दे बराबर होएगा, ठीक है। हाँ जी, पूछा है कि a माइनस डी की वैल्यू कितनी आऊगी इस तरह के क्वेश्चन के अंदर। हुण तुसीं इस मैं प्रॉपर मेथड नाल नहीं कराने वाली, मैं इन्ना लेंथी इन्ना टाइम वेस्ट आप नहीं करते। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 1/mn, ऑप्शन डी है 1/m प्लस 1/n। हाँ जी, तो दसो ये अंदरों केड़ा आएगा। तो देखो सब्स्टिट्यूशन करांगे। मैं की किया थी, सिर्फ mn की गल हो रही है, मैं ले लिया m1 n2 ले लिया, ठीक है, m1 ले लिया n2 ले लिया। तो मेरे को t1 कितना आ गया 1/2 आ गया, t2 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। a माइनस डी पूछा है, आपने टर्म फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 1 ते सेकंड माइनस डी करना है, इन्हां दा डिफरेंस कितना है जी, इन्हां दा कॉमन डिफरेंस कितना बन रहा है, सेकंड के अंदर फर्स्ट का हाफ बन रहा है, तो कॉमन डिफरेंस भी हाफ, कितना आ गया जी 0। तो a माइनस डी इज योर आंसर 0, ठीक है जी। तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर देना है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की कह रहा थानू, कहंदा a स्क्वायर, कहंदा इफ a स्क्वायर b स्क्वायर, आओ मैं रिजल्ट भी याद रख सकते हो, कहंदा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रही ने ap, जे कहंदा ए ap दे अंदर हैं, देन ता 1/b प्लस c 1/c प्लस a ते 1/a प्लस d किस दे अंदर होणगे। आ पूछे जी आ चीज किस दे अंदर होएगी। तो देखो हुण आपां इन्हां दी इस तरह दी वैल्यू लेनी है कि ap बन जाए। मैं की किया, मैं क्या a स्क्वायर 1 ले लेने, b स्क्वायर मैं 25 ले लिया, ते c स्क्वायर मैं ले लिया अपने कोल 49, 1 5 ते 7 दे स्क्वायर बने ना। हाँ जी, तो मैं ये ले ले a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 25 ते 49 ap के अंदर आ गए। हुण इत्थे इन्हां दी वैल्यू पुट कर देनी आपां, सब्स्टिट्यूशन मेथड नाल सोल्व करना। ऑप्शन दे दवां तुहानू पहला कि तुसीं जे पहला आंसर देना तो पहला दे सकदे हो कि AP च होणगे, GP च होणगे, HP च होणगे या फिर नन ऑफ द अबव होएगा। हाँ जी, किस दे अंदर होणगे। तो देखो इत्थे वैल्यू पुट कर देने आ, A कितना है 1 ते C कितना है 1/b प्लस c करना है ना, ओ सॉरी 1/b प्लस c देखना है। b कितना है जी 5 है, c कितना है 7 है, ओके। c कितना है जी 7 है, a कितना है 1 है, a कितना है 1 है, ते इत्थे की होना सी a प्लस b होना सी b, इत्थे b होएगा ते b कितना अपने कोल 5 है। ताकि बनिया 1/12 1/8 ते 1/6 ते आ तुहानू दिख ही रहा है कि आ जिहड़ा है AP दे अंदर हैगा है अपने कोल। ए टर्म्स किस दे अंदर ने AP दे अंदर हैगियां ने, सरेआम पता ही चल रहा है कि ये टर्म साडे कोल AP दे अंदर हैगियां हन। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया।
विद सबस्टिट्यूशन तुसी किसी भी क्वेश्चन का हल कर सकते हो बड़ा ही इजीली। ठीक है, रूल नहीं याद से ताकि आप चेक करके दसता कि ए किस दे अंदर होणगियां, एपी दे अंदर होणगियां। सॉरी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना दी फर्स्ट सेकंड ते थर्ड टर्म एपी दिया एबीसी ने कहना ए पहली दूजी ते तीजी टर्म्स ने एपी दिया द सम ऑफ एपी। अब पूछे द सम ऑफ एपी नहीं, कहना फर्स्ट सेकंड ते लास्ट। हाँ, पहली दूजी ते लास्ट टर्म दी हुई है, कहना सम कितना होएगा इस एपी का। ऑप्शन है जी 2 इंटू सी माइनस ए बाई बी माइनस ए। ओके, ऑप्शन बी है जी 2c इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस सी। ऑप्शन सी है जी 2c इंटू बी माइनस ए अपॉन सी माइनस ए। ऑप्शन डी है जी 2b इंटू सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। हाँ जी, तो आप पूछे ना जो केड़ी ऑप्शन सही होगी। जनरली तुसी करोगे तो तुसी की करोगे, तुसी फर्स्ट टर्म लोगे, डी कॉमन डिफरेंस लोगे, फिर सम कढोगे, फिर टर्म्स कढोगे, फिर उन्हें सॉल्व करोगे। ओदी बजाय ट्रिक की कहती है कि पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो ते सॉल्व करो। मैं की किया, एपी ले लेने 1 2 3 4 5 वाली एपी ले ली। ठीक है, इत्थे मेरे को ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 2 ते सी कितना आ गया, पर इत्थे लास्ट टर्म नहीं होना चाहिए सी। एक मिनट मैं क्वेश्चन चेक करती हूं। फर्स्ट सेकंड ते थर्ड टर्म ही है। हाँ जी, फर्स्ट सेकंड ते थर्ड ही है। तो A1 आ गया, B2 आ गया, C कितना आ गया मेरे को 3 आ गया। ठीक है जी, हुण तुसी एक चीज नोट करो, एपी का सम कितना बन रहा है, मिडल टर्म। क्वेश्चन में गड़बड़, दो क्वेश्चन ध्यान नाल देख ले, सेम क्वेश्चन सी। की कह रहा है किसे एपी दी पहली दूजी ते विचकार वाली टर्म दी हुई है, मिडल टर्म सी दी हुई है, तो इस एपी का सम पता करना है। तो मैं एपी की ले ली, मैं एपी ले ली 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं आ वाली एपी ले ली, तो मेरे को पहली टर्म की बन गई 1, दूजी टर्म की बन गई, बी की बन गया 2, मिडल टर्म हुन एदे विचकार वाली टर्म केड़ी है, मिडल टर्म की बनी है जी 3। ठीक है, एने दा सम पूछे, एदा सम अपनी एपी दा सम की बन रहा है, अपनी एपी दा सम बन रहा है 5 ते 6 ते 10 ते 15 बन रहा है। हुन तुसी ओही ऑप्शन देखो, ओ ऑप्शन चेक करने हैं जिस दे अंदर ए बी सी दी वैल्यू भरन ते 15 बने। ओ ऑप्शन देखने जिस दे अंदर ए बी सी दी वैल्यू भरन ते 15 बने। मैं तो इस तरह दा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन अंदर पहला भी कराया होया है। देखो एक एपी ले ली, इन्होंने कैसी विचकार वाली टर्म दी है, इन्होंने 2 टर्म्स देती सी, एदा मतलब कि विचकार वाली टर्म सी है, ते मैं 3 टर्म तो वध लेनी पैनी है, मैंने विचकार वाली लेनी था क्योंकि 3 तो इन्होंने दे दी। जे मैं 3 से लेके चला था मैं फिर मेरे को विचकार वाली नहीं बननी सी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ते आ मिडल के है, तो मैं 3 तो वध ले लिया, मैं 5 टर्म्स ले लिया, ਤੁਹਾਡਾ मन करे 7 ले लियो जिवें तुसी ਤੁਹਾਡਾ जी चाहे। मैं की क्या, मेरे मैं मान ले कि आ एपी है, आ एपी मन्नी तो मेरे को ए दी बी दी सी दी वैल्यू आ गई, ते एदा सम कितना बन रहा है 15 बन रहा है। हुन मैं ऑप्शन चेक करनी है जिसके अंदर ए बी सी दी वैल्यू भरन ते 15 आ जाए, वही साडा आंसर होएगा। ठीक है, तो आप देखो पहले दिन भरिए सी माइनस ए कितना है। ठीक है, आ गया जी 2 ते 4 बटा 1 नहीं बन रही। दूसरी देखो 2c मतलब कि 6 इंटू सी माइनस ए 2 डिवाइड बाय बी माइनस ए 1 प्लस सी। आ देखो 6 दूनी 12 ते 3 15। ऑप्शन बी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करेक्ट आ जाएगा जी, करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। जनरली इस क्वेश्चन करोगे बहुत लेंथी ते बहुत ही औखा जिहा क्वेश्चन है, पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ आ गया, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਪੀ ਸੋਚ ਲਈ 1 2 3 4 5। ਆਪਣਾ क्वेश्चन गलत हो गया ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, 1 2 3 4 5 ਆਪਾਂ ਏਪੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮ ਮੇਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ 15 ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਟਿਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ABC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨ ਤੇ 15 ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ठीक है जी, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहंदा S n denote the sum of n terms, the S R denote sum of R terms, n बोल वाले sum of R terms, then S3R minus SR minus 1 divided by S2R minus S2R minus 1 किस दे बराबर होएगा। पेपर से इस तरह के क्वेश्चन दिखने दे नाल ही तुझे सब्स्टिट्यूशन लगा देना है। ऑप्शन ए 2R minus 1 होएगा, ऑप्शन बी है 2R plus 1 होएगा, ऑप्शन सी है 4R plus 1 होएगा, ऑप्शन डी है 2R plus 3 होएगा। कर दो जी सोल्व, की होएगा। हाँ जी, तो देखो मैं की क्या, मैं आप एक एपी ले ली, वही सेम एपी 1 2 3 4 5 वाली, ठीक है। आप आर ले लिया, मैं ले लिया कि लेट आर ले लेने, आप जनरली आप 1 लेने, पर मैं इतने आर 2 लवांगी क्योंकि जब मैं 1 ले लिया तो एस 0 बन जाएगा, ओदा मेरे को कोई मतलब नहीं रहता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के लेना पड़ेगा। मैं आर ले लिया जी 2, R2 ले लिया। हुन देखो अपने को की बनया S6 माइनस S1 अपॉन S4 माइनस S3। हुन S6 दी वैल्यू कितनी बनेगी, ਇਹਦੇ 6 टर्म्स ਦਾ जोड़ कितना बनेगा 21 बनेगा, माइनस S1 कितना 1, 4 टर्म का जोड़ कितना बनेगा 10 बनेगा, तीनों का जोड़ 6 बनेगा। आ गया जी 20/4, आंसर आ गया 5। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ 5 ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ 5 ਆਵੇ, बी ऑप्शन सरियाम दिख रही है। करेक्ट आंसर आएगा 2r plus 1, ठीक है। कोई रिजल्ट नहीं याद रखना, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है ते क्वेश्चन को बना देना है इजी, ठीक है। हाँ जी, देखो इस तरह के क्वेश्चन एक बार करने नाल नहीं आएंगे, बार बार दोहराई करोगे, प्रैक्टिस करोगे ता ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन क्लियर ਹੋਣਗੇ जी, ठीक है जी। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ क्वेश्चंस ਦੀ प्रैक्टिस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन वेट, क्वेश्चन नंबर 7। कहता if sum of 16 terms of AP, if S16 is equal to 256, मैं शॉर्टकट से लिख देनी है, and S20 equal 400, then S42 कितना होएगा। ऑप्शन से कहने 1764, 656, ओके, 1864, 1656। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ A ਕੱਢੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ D ਕੱਢੋਗੇ। ਸੌਰੀ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ A ਕੱਢੋਗੇ, D ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਲੈਂਥੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ P ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਮ P ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ, Q ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ Q ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ N ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ N ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, P ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ P ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, Q ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ Q ਸਕੁਅਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ N ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ N ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1764 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 6 ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1764 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रही है ਤੁਹਾਡੇ सामने, क्वेश्चन नंबर 8। कहता ओ सॉरी, if 10 टाइम ऑफ A10 इक्वल है 15 टाइम ऑफ A15, then find A25। हाँ जी, आ भी ट्रिक वाला क्वेश्चन सी। ऑप्शन 10, 15, 25 या 0। रूल याद रखने को कहा सी मैं, उसे रूल का क्वेश्चन है जो मैं रूल याद रखने को कहा सी कि इफ
पी टाइम ऑफ मैं लिखवाया भी सी, मैं रूल तो लिखवा भी चुकी हाँ कि किसी पद का इन्ने गुणा उस पद के उन्ने गुणा के बराबर है, तो उसका MN वाला क्वेश्चन सी जी। क्वेश्चन अपने को MN वाला सी, ठीक है। तो MN वाला फार्मूले के अंदर आप एक कॉमन डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी किया सी, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आप किया सी। तो इसका की होएगा जी, हमेशा ही 0 होएगा। कितना होएगा जी? 0 होएगा। करेक्ट आंसर कितना आ गया जी? 0। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, कहता इफ, मैं शॉर्टकट से लिख रही हूँ, इफ A10 इक्वल है 1/15 एंड A15 इक्वल है 1/10, देन फाइंड S of 150। हाँ जी, आप पूछे। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 151, ऑप्शन डी है 151/2। हाँ जी, की होएगा? देखो आप फॉर्मूला दसिया सी मैं कि इफ AP is mth term of AP is 1/n and nth term is 1/n, then sum of mnth term की ਹੁੰਦਾ है, याद रखना है तुसी 1 + mn/2 ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। तो 1 + mn कितना बनया 150 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 151/2। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देखो जी, ये याद तो तुहानू रखने ही पैने ने, याद तो तुहानू करने ही पैणगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है साडे कोल हुण। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 की कहता है, देखते हैं, लेट अस सी व्हाट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10। इफ the ratio of n term of 2 AP, if the ratio of n term of 2 AP is 14 and -6, ठीक है, कितना है जी? वेट, हाँ जी, 14 and -6 ते 8 and +23। कहता आ रेशियो है किसी भी 2 AP दी n टर्म्स दा। कहता फाइंड दी रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। कहते n टर्म्स दे सम दा रेशियो की होएगा। तो मैं की दसिया सी, जे टर्म्स दा रेशियो दिता होए FN ते GN प्लस H प्लस L, ठीक है, तो सम दा रेशियो की बनता है, की बनया सी, n दी जगह की कर देना है n+1/2 कर देना है, n दी जगह n+1/2 कर देना है। वही मैं किता, n दी जगह n+1/2 किता, तब n कितना है? अच्छा, n था ही n+1/2 -6। सिमिलरली इत्थे किता n+1/2 +23। आ बन गया जी कट के 7 7n + 7 -6 करा के तो 1 आ गया। आ बन गया जी 4n + 4 ते +23 का 27। तो आ आंसर आ गया जी तुहाडे कोल nth टर्म्स दे सम दा रेशियो आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 19th टर्म of AP is 39 and 39th term is 19, then find 53rd term। कितनी होएगी दसो? ऑप्शन ए है, सीधा आंसर आना चाहिए 5, ऑप्शन बी है 58, ऑप्शन सी है 39, ऑप्शन डी है 19। दसो कितना आएगा? तो मैं दसिया सी कि इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन p + qth टर्म की होंदी है, वही बने ना p + q 19 + 39 नहीं, हाँ, इफ pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, देन फाइंड द nth टर्म। nth टर्म सी, तो nth टर्म की होंदी है p + q - n होंदी है।
है ना। ते पी कितना है 19, 19 प्लस 39 माइनस 53 कर दो। आ 40 ते 50 ते 58 तो 53 के 5 आ गया आंसर ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया जी ऑप्शन नंबर ए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਖਵਾ ਦਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। याद रखियो जे pth टर्म 1/q है ते qth टर्म 1/p है ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ a ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/pq ਹੋਏਗਾ, d ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ 1/pq ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, a m किस ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ m/pq ਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਮ ਆਫ m ਟਰਮਸ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾबर ਹੋਏਗਾ m plus 1/2pq। आ चीज तुसी याद कर लेनी है। जदों भी pth टर्म 1/q ते qth टर्म 1/p दे दे, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। तो अपने कोल की है फर्स्ट टर्म की होगी 1/pq, कॉमन डिफरेंस 1/pq, nth टर्म n/pq ते सम ऑफ n टर्म्स की होएगा m × m + 1/2 टाइम pq। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਫ 10th ਟਰਮ, ਮੈਂ a10 ਹੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਿੱਥੇ 10th ਟਰਮ ਲਿਖਾਂ, 1/20 ਹੈ ओके, एंड 20th टर्म 1/10 है। फाइंड सॉरी फाइंड S200 सॉरी। ਹੁਣ ਆ क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन देती हैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ पेपर ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ 50 200 1/4 100 ਤੇ ਹੈ 200 1/2। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ m × m + 1/2 pq। ਆ ਲਗਾ ਦੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸੀ ਕਿ pth ਟਰਮ q qth ਟਰਮ p ਤਾਂ pq ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਈ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 1 + mn/2 ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ mn, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ m ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, 1 + mn/2 ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ p × q, ਇੱਥੇ ਤਾਂ p × q ਬਣ ਗਿਆ 200 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 100 × 101/2 p ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਤੇ q ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20, 2 × 200, अच्छा 200 ਸੀ 201, 200 ਨਾਲ 200 ਕੱਟੇਗਾ 201/2, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 199 40 45 ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ 1 + mn/2 ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ mm + 1/2 pq। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਓ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है साडे कोल, अच्छा आप कर चुके हैं, वेट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की कहता है कि इस तरह क्वेश्चन अपने कोल, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 14 है इफ 9th टर्म ऑफ AP इज 0, कहना 9th टर्म 0 है ओके, देन द रेशियो ऑफ 29th एंड 19th टर्म। हुण इत्थे अपना कोई फार्मूला अपन नहीं लेना, देन रेशियो ऑफ 29th एंड 19th टर्म आप पूछिए। ऑप्शंस भी देती है 1/2, 1/3, 3/1, 9/1। ठीक है, ये सब अपन ऑप्शंस दी हुई ने, अपन सोल्व करना है। एना 9th टर्म 0 कहता, A9 की है 0 है, ठीक है, आई क्या है कि 9th टर्म 0 है तो अपने हिसाब नाल 9th टर्म की बनती है
ए प्लस 8d बनती है, ए प्लस 8d अपने को 0 है। ठीक है, इत्थों मेरे को की समझ आया, इत्थे मेरे को की आ गया, इत्थों मैं ए ते डी का रेशो कढ़िया, वो कितना आ गया -8 आ गया। देखो ए इक्वल -8d, ए अपॉन डी कितना आ गया -8 आ गया। थोड़ा जिहा माइंड लाना तुसी सिर्फ। हुण मैनू पूछे 29 ते 19 का, 29 नू ए प्लस 28d लिखांगे, 19 नू ए प्लस 18d लिखांगे। इत्थे ए दी इत्थे आपां वैल्यू पुट कर दिंदे आ। इत्थे मैं की कीता, आ मेरे को बन गया a बाई डी प्लस 28 बन गया, क्योंकि मेरे को a बाई डी की वैल्यू है, इथों d नाल डिवाइड करता दोवां पासे। a बाई डी प्लस कितना बन गया 19, a बाई डी की वैल्यू कितनी है -8, थल्ले भी a बाई डी की वैल्यू कितनी है -8 प्लस 19 आ गया जी 20/11। हाँ क्यों है 20/11। अच्छा 19 टर्म 18d लिखांगे। ठीक है, आ गया जी 20/10 का 2:1। ऑप्शन नहीं लिखी, 2:1 आएगा। करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 साडे कोल की है, लेट अस सी। इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, पहली दूजी ते लास्ट टर्म दी हुई है ए बी सी। ठीक है, देन नंबर ऑफ सीरीज, कहना नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, देन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, एपी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। ऑप्शन ए है जी बी प्लस सी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए होएगा। ऑप्शन बी है बी प्लस सी प्लस 2a अपॉन बी माइनस ए होएगा। ऑप्शन सी है जी बी प्लस सी माइनस 2a। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, 100% ਨਿਕਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 100% ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ जनरल मेथड नाल देखिए तो अपन पता लास्ट टर्म अपन फर्स्ट सेकंड दे लास्ट दी हुई है। हाँ जी, पहला तो इतो देखो डी कितना आंदा है, बी माइनस ए आंदा है। ठीक है, लास्ट टर्म सी है, सी क्यों होंदा जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होंदा है, आई होंदा है। हाँ जी, तो इतों आप मैं जनरल मैथड नाल करा रही हाँ, डी कढ़ लिया, रुको, डी आ गया बी माइनस ए, सी आ गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू इतने पुट कर दो बी माइनस ए। ठीक है, हाँ जी, अपन एन की वैल्यू चाहिए है, आ मेरे को बन गया सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल किस दे एन माइनस 1 दे। इतों एन कितना आ गया सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस 1। हूँ सोल्व करके देख लो, आ बनेगा सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, आ गया जी सी प्लस बी माइनस 2a अपॉन बी माइनस ए। ऑप्शन नंबर ए तो को आंसर बन गया जी, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, तो आज जी जनरल मेथड की किया, डी कट लिया, बी माइनस ए होएगा, लास्ट टर्म का फार्मूला लगाता, सोल्व करके एन कट लिया। ये आप ट्राई करिए सब्सटीट्यूशन मेथड नाल। ठीक है, अज अपन 20 दिन से 15 ही क्वेश्चन करांगे, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है तो आप 15 ही क्वेश्चन करांगे, बाकी होर इस तो औखे क्वेश्चन एपी के अंदर आने नहीं, तो बाकी क्वेश्चन तो आप इकट्ठे करांगे ना, एपी जीपी कंप्लीट करके उदों कर लांगे। हाँ जी, आप इत्थों थोड़ा इरेज कर लेने। आप छोटी एपी लेके देखने, उवें तो 5 वाली लेनी चाहिए, आप 3 वाली लेके भी देख लेने कि आप होर सौखा कर सकते हैं कि। मैं ले ली एपी 1 2 3, ठीक है, चलो 4 5 ले ली, 5 टर्म्स ने। ठीक है, अपने हिसाब नाल ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया 2, सी कितना आ गया 5। वो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो जिस ए बी सी की वैल्यू भरने आंसर 5 आए, पहले दिन अंदर ही भरो 2 प्लस 5 माइनस 2 बटा 1, 2 नाल 2 गया 5 बन गई ना। ऑप्शन नंबर ए ही तो आंसर आ गया, सीधी जी गल है।
ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ 1 + 2 - 2 अपॉन, पर 3 बहुत घट हो जानी सी, नहीं 3 आना सी इत्थे, हाँ आ 2 आना सी, गलती करी 2 नाल 2 कट्टिया गया, आ इत्थे 1 आना सी फिर भी 3 आ जाना सी, 3 टर्म लेंदे फिर भी हो जाना सी। तो सब्सटीट्यूशन मैथड वर्गा कोई मैथड नहीं है, जिथे आपां नवें लोग कोई कोशिश करिए कि सब्सटीट्यूशन होता है उत्थे सब्सटीट्यूशन ही लगाना है। ठीक है जी। तो आ सी जी इसदे अपने टॉप 15 क्वेश्चन करने, 20 सी मैं 5 क्वेश्चन स्किप कर गई, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मेरी हेल्थ मैनू इन्ना साथ नहीं दे रही है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕੀਪ ਸਮਾਈਲਿੰਗ, ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ ਐਂਡ ਅਚੀਵ ਯੂਅਰ ਗੋਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।